Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comments, queries and suggestions. I am Muhammad and today we are going to solve the exercise of chapter number 3, Pip Meets a Convict, from New Oxford Modern English Book 4, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. And if you need essay in English language about any topic, please visit my blog. Link is also in the description. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है. वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. Oh Allah, increase us in knowledge. The first section of exercise is section A, comprehension. Question number 1 है. Answer the following questions. A. What is the setting for this story? Where do the event take place? यानी ये जो सारा वाक्य पूरी स्टोरी हुई है ये किस जगह पर हुई है वो हमने बताना है. B है. What was Pip's full name? Pip का पूरा नाम क्या था? C. Where did he lived and with whom? वो कहाँ रहता था और किसके साथ रहता था? D. Why did Pip feel sad? उदास क्यों महसूस कर रहा था? And start to cry, और रोना क्यों शुरू कर दिया? In the graveyard one day, एक दिन कब्रिस्तान में. E. What did the convict tell Pip to get for him? Convict यानी कैदी ने उसको क्या बताया था कि वो क्या लेकर आए? F. Where and when did the convict want to meet him again? उस कैदी ने उससे कहाँ क्या जगह बताई थी दोबारा मिलने के लिए? These questions are more difficult. ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल हैं. Discuss them first. इनको पहले डिस्कस करें. जी क्वेश्चन है. What did the convict say and do to frighten Pip? Convict ने पिप को डराने के लिए क्या एक्स्ट्रा बात की और उस ज़्यादा मतलब उसकी ऐसी क्या बात की जिससे वो ज़्यादा डर जाए. H. How do we know that the convict was cold and hungry? हमें कैसे पता चलता है कि जो कैदी था वो उसको सर्दी भी लगी थी, ठंड लगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा भूखा भी था. किन बातों से ये जाहिर होता है? I. The convict says that he is not alone and that he has a young man hiding with him. Do you think this is true? Why does he tell this to Pip? कैदी ने क्यों कहा था कि वो अकेला नहीं है और उसके साथ एक यंग मैन भी है, और क्या ये सच है और आप क्या समझते हैं कि उसने पिप से ऐसा क्यों कहा? The answer of question number 1 is the setting of this story is churchyard. B. Pip's full name was Philip Rip. इसके बाद है क्वेश्चन सी का आंसर. Pip lived in his sister's house with his sister and her husband, the blacksmith, Mr. Joe Gregory. D. Pip started to cry in the graveyard one day because he realized that he was an orphan and felt sad. He is also made to feel sad by the grey land and sky. E. The convict told Pip to get him a file and some grub. The next answer is F. The convict wanted to meet Pip early the next morning at the battery. G. The convict picked Pip up and put him on top of a gravestone. He turns Pip over and bent him backwards while holding on to him. He threatens Pip by saying that another man is hiding with him and that he will attack him and eat his innards. The next answer is H. We know that the convict was cold and hungry because he was shivering, his teeth were chattering, probably due to his wet, ragged clothes, and because he asked Pip to bring him some food. We also learn at the start of the story that it was a cold, grey day. And the last answer is it is likely that he tells Pip this because he wants to make sure that Pip is too frightened to tell anyone about him. The next question is question number 2. Answer the questions about this line from the story. Story से एक line ली गई है. The man jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder. इस line को हमने chapter से लिया है और इससे related 3 questions हैं हमारे पास. A. Who is this about? B. Why did he start to run away? And C. What did he realize that made him stop? The answers of these 3 questions are A. The convict. B. He thought that Pip's parents were close by. And C. He realized that Pip was pointing to the gravestones, which had his parents' names on them. The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 है find the correct meanings of the following in a dictionary. इसी डिक्शनरी में आपने इन वर्ड्स के करेक्ट मीनिंग्स को फाइंड आउट करना है. Write the words and meanings in your notebook. और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है. Note that the words
मे हैव मोर देन वन मीनिंग, हो सकता है इनमें से कई वर्ड्स की एक से ज़्यादा मीनिंग हो. टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इन वर्ड्स के मीनिंग जानने के लिए यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करना है डिक्शनरी में देखने के लिए जिस तरह से हम यूज़ करते हैं, उसी प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है. वर्ड्स हैं हमारे पास आयरन, सेफ, प्रेजेंट, डेंजर, फेल, टक, टिल्ट, हग्ड, फाइल एंड क्रीप. डिक्शनरी की हेल्प से जब हम इन वर्ड्स के मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे तो आयरन, स्ट्रॉन्ग हार्ड ग्रे मेटल. सेफ, protected from danger or risk. Present, occurring now. Danger, the possibility of suffering injury or harm. Fail, to not do something or to be unsuccessful in doing something. The next word is tuck, to push in loose pieces of cloth such as a bed sheet to make it tidy or comfortable. Next word is tilt, to move into a sloping position. Hugged, squeezed tightly. File, a tool with a rough surface used for shaping a hard metal. Creep, to move slowly or carefully in order to avoid being noticed. The next question is question number 2. The letters in the words below are jumbled. नीचे जो हमें words देंगे हैं उनमें letters को jumble कर दिया गया है. We call these words anagrams. इनको हम anagrams बोलते हैं. Example है bread, B-R-E-A-D, bread is an anagram of beard, B-E-A-R-D, beard. What are these words? ये words क्या है? You will find the anagrams in the story. इन नीचे जो हमें वर्ड्स गिवन हैं इनके एनाग्राम्स हमें स्टोरी में मिल जाएंगे. कुछ पहले जो वर्ड्स हैं वो इजी हैं और उसके बाद हमें नॉट सो इजी, यानी जो उसके सेकंड पार्ट के अंदर हमें वर्ड्स गिवन हैं वो इतने इजी नहीं है, उनको सॉल्व करना और उनके एनाग्राम्स बनाना मुश्किल है थोड़ा सा. पहले हम इजी वन को देख लेते हैं. सेड, व्हाट, वेंट, स्टोन, नेम, लिव, टाइम्स, आर्म्स, फाइल एंड केम. इसके बाद जो वर्ड्स हैं वो इतने आसान नहीं हैं. रोस्टेड, क्लॉथ्स, हार्ट एंड टॉमस्टोन. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना. सबसे पहली जो हेडिंग है या टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स. क्वेश्चन नंबर 1 है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग. कुछ सेंटेंसेस गिवन है हमें, इनको रीड करते हैं और इनमें से एडजेक्टिव्स को हमने पॉइंट आउट करना है, सेपरेट कर लेना है. ए है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग गर्ल. B, she went to a good school and had a clever teacher. C, by mistake she brought her old textbook to class instead of the new one. D, the forgetful girl thought the teacher would shout at her in a loud voice. E, but the thoughtful teacher noticed the poor girl's expression. F, the teacher opened her metal cupboard with a shiny key. G, you can borrow this spare copy, said the kind teacher. इन सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव्स गिवन हैं वो हैं ए, यंग, बी, गुड, क्लेवर, सी, ओल्ड, न्यू, डी, फॉरगेटफुल, लाउड, ई, थॉटफुल, पुअर, एफ, मेटल, शाइनी एंड जी, स्पेयर, काइंड. नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस. डू यू नो व्हाट इज़ अ फ्रेज? आप जानते हैं कि फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है. इट्स नॉट अ सेंटेंस, ये एक जुमला नहीं होता, बट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जुमले का एक हिस्सा होता है. अ फ्रेज गिव्स अस एन आइडिया. फ्रेज हमें एक आइडिया दे सकता है बट डज नॉट हैव अ वर्ब इन इट. और इसके अंदर कोई वर्ब नहीं होता, यानी वर्ड्स अरेंज होते हैं, इसका मीनिंग भी होता है लेकिन इसमें वर्ब यानी वर्किंग वर्ड नहीं होता. हियर आर सम फ्रेजेस. यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं. इन अ मिनट, यू एंड आई, अप द ट्री, माई फादर्स शर्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन पेज नंबर 29 आर फ्रेजेस. हमने फ्रेजेस को पॉइंट आउट करना है. नोट दैट द पंक्चुएशन हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है हम इनको देख लेते हैं. ए, ओवर द फेंस. बी, ही किक्ड इट. सी, शी लाइक्स मैंगोज. डी, इन अ डिश. ई, नाउ एंड देन. एफ, आई एम ऑन द रोड. जी, 3 और 4. एच, दे डोंट वांट एनी. आई, आर यू कमिंग. जे, गुड एंड बैड. यहाँ पर जो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं उनको हम छोड़ देंगे और सिर्फ फ्रेजेस को लेंगे. ए है ओवर द फेंस. डी, इन अ डिश. ई, नाउ एंड देन. जी, 3 और 4 एंड जे, गुड एंड बैड. समटाइम्स फ्रेजेस आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. बाज़ वक़्त हम फ्रेजेस को एडजेक्टिव्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं. एग्जांपल है दिस इज़ अ बुक विद एन ओल्ड कवर. ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट एज. द एडजेक्टिव फ्रेजेस आर इन इटैलिक्स अबव. जिनको थोड़ा सा टेढ़ा करके टिल्ट करके लिखा गया है उनको इटैलिक्स बोलते हैं. ये वर्ड्स यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं, यानी फ्रेजेस हैं लेकिन इनको एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. एड सूटेबल एडजेक्टिव्स फ्रेजेस टू द फॉलोइंग.
नीचे जो ब्लैंक्स गिवन है उनको हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस से फिल करना है। ए है शी बॉट द शर्ट, बी आई लुक्ड एट द स्काई, सी दे सॉ द फॉक्स, डी दिस इज़ अ शर्ट, एंड ई ही हर्ड द टाइगर। इन सब सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है और इसमें जो फ्रेजेस हम ऐड करेंगे वो एडजेक्टिव फ्रेजेस होने चाहिए। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले होगा हमारे पास विद फैंसी पॉकेट्स, बी वास्ट एंड ब्लू, सी विद एन इंजर्ड लेग, डी विद लॉन्ग स्लीव्स, एंड ई ऑफ दैट जू। The next section of exercise is section D, listening and speaking. सुनना और बोलना। What will Pip do and why? Pip क्या करेगा और क्यों करेगा? Question number 1 है your class will be divided into 4 or 5 groups. आपकी क्लास को 4 या 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। Each group should do the following. हर ग्रुप ने ये काम करने हैं। ए है डिस्कस एंड डिसाइड वेदर और नॉट पिप विल हेल्प द कॉन्विक्ट। हमने डिसाइड करना है कि पिप उस कॉन्विक्ट की, उस कैदी की मदद करेगा या नहीं। बी राइट डाउन द रीजंस वाई ही विल और वाई ही विल नॉट हेल्प द कॉन्विक्ट। अगर आपने कहा है कि मदद करेगा तो उसका भी रीज़न बताना है, और अगर आपने कहा कि नहीं करेगा तो उसके लिए भी आपको रीज़न देना होगा। सी है सिलेक्ट वन स्पीकर टू पुट फॉरवर्ड द व्यूज़ ऑफ द ग्रुप। और हर ग्रुप ने अपने जो जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर को चूज़ करना है जो कि स्पीकर कहलाएगा, और वो सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके पूरे ग्रुप का उसको सबके सामने पेश करेगा। इसके लिए डिफरेंट राय हो सकती है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। जो मैंने आंसर लिखा है वो ये है, आप लोग खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। When living with parents, we have strong relationship with them. Here, Pip lives with his sister and she is married. If she takes care of him and they share everything with each other, it will be easy for Pip to share this incident. But if she is not very close to him and Pip is alone, then he will go and help the convict. The next question is question number 2. Go back to exercise D3 on page number 21, a night in June. Find 2 words to add to each row. वहाँ पे हमें रोज़ दी गई थी, हर रो में 3 वर्ड्स गिवन थे, हमने 2 वर्ड्स और ऐड करने हैं। मैच द साउंड ऑफ द 3 कॉन्सोनेंट इन अ रो, और उसके बाद 3 कॉन्सोनेंट एक रो में हो, ऐसे वर्ड्स को मैच करना है। रिमेंबर दैट यू कैन यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द वर्ड्स दैट बिगिन विद 3 कॉन्सोनेंट। ऐसे वर्ड्स जो 3 कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हों उनको हमने चूज़ करना है और अलग कर लेना है। उस लिस्ट में भी हमें काफ़ी ऐसे वर्ड्स गिवन हैं, हम उनमें से ही सेपरेट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 2 वर्ड्स हर लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। हमें जो लिस्ट गिवन थी वो थी बॉट, फोर्ट एंड कॉट, हमने ब्रॉट और थॉट उसमें ऐड किया। नेक्स्ट में 3 वर्ड्स से नाइट, राइट एंड ब्राइट, हमने जो ऐड किए वो है साइट और लाइट। नेक्स्ट है थ्रश, थ्री, थ्रेड, थ्रॉन, थॉर्न एंड थीसिस, स्प्लिट, स्प्लैश एंड स्प्लैट गिवन थे, हमने ऐड किए स्प्लिंट एंड स्प्लीन। नेक्स्ट है स्प्रिंग, स्प्रे, स्प्रिंकल, हमने जो ऐड किए 2 वर्ड्स वो हैं स्प्रेड एंड स्प्राउट। इसको आप खुद से भी सर्च करके और वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी की हेल्प से। नेक्स्ट है स्क्रीन, स्क्रब, स्क्रैप, स्क्रैच एंड स्क्रॉल, स्ट्रीट, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेस एंड स्ट्रोक। लास्ट है स्क्वायर, स्क्वीक, स्क्विरल, स्क्वैश एंड स्कॉट। और इसके बाद हमें ऐसे वर्ड्स की लिस्ट चाहिए जो कि 3 कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। हम इन्हीं ग्रुप्स में से चूज़ कर लेते हैं। थ्रश, थ्री, थ्रेड, थ्रॉन, थॉर्न एंड थीसिस, स्प्लिट, स्प्लैश, स्प्लैट, स्प्लिंट एंड स्प्लीन, स्प्रिंग, स्प्रे, स्प्रिंकल, स्प्रेड, स्प्राउट, स्क्रीन, स्क्रब, स्क्रैप, स्क्रैच एंड स्क्रॉल। लास्ट है स्ट्रीट, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेस एंड स्ट्रोक। देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स हमें यहाँ पर गिवन है उसमें फर्स्ट 3 जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहे हैं, उसमें कोई भी वावल नहीं है। The next and last section of exercise is section E, composition. Pip was very frightened by the convict. Pip convict से बहुत डर गया था, उस कैदी से बहुत डर गया था। The convict was frightened when he thought Pip was pointing to his parents. और कैदी भी डर गया था जब उसने ऐसा फील किया कि वो अपने पेरेंट्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है या इशारा कर रहा है, जबकि वो टॉम स्टोन की तरफ इशारा कर रहा था। थिंक ऑफ अ टाइम, ऐसे वक्त के बारे में सोचिए, व्हेन यू हैव बीन फ्राइटेंड, जब आप डर गए थे। वाज इट समथिंग यू सॉ और वॉच्ड, क्या ऐसी चीज़ जिसको आपने देखा था। डिड समथिंग और समवन मेक यू जंप, क्या किसी वजह से आप चौंक गए थे, ऐसी कोई वजह थी। राइट अबाउट इट, इसके बारे में लिखिए। यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी इंसिडेंट लिखा है, आप अपना कोई ट्रू इंसिडेंट है तो वो भी लिख सकते हैं। अ फ्राइटफुल एक्सपीरियंस। It was almost 9 at night. I had to walk through an area filled with undergrowth to get to the shop. There were no buses, so I had to walk. The shop was the nearest one. As I was feeling rather tired, I decided to take a shortcut through the back alley. Suddenly, I heard a growl from within some bushes. I noticed that it was dark and still. A ferocious dog appeared in front of me with its fangs bared. I froze. If it were to attack me, I know I could not fight it. Nobody seemed to be around. I had heard that if you keep still, a dog would not attack. It worked.
The dog came up to me and sniffed me all over, but it did not bite me. I trembled with fear but dared not move. After a while, it lay down beside me. I thought it was safe to go, but the moment I moved a leg, it stood up and growled fiercely again. I was trapped. The dog would not let me move. What could I do? As long as I remained still, it was all right. But how long could I stand there like that? Then I had an idea. I shouted, "Help, help." The dog looked confused but did not attack me. The shopkeeper heard my shouts and came to investigate. The dog, which was obviously his, wagged its tail and folded back its ears. He quickly brought a chain and tied it to a post. I was so relieved. The shopkeeper apologized and gave me a free packet of biscuits. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.